ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੋਂਟ ਕਮੈਂਟ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਤੋਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਏਡੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕਤਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬੱਜਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਸਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ TV, हरियाणा। बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। हिंदी में पहले? हाँ सर, एक बार सारा इंट्रोडक्शन करवा दो। अरे नहीं, पहले आप जैसे ऐसे बोलते जितना तो बोल रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन आप देते रहेंगे। आज बीबी जगीर कौर, प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बहुत ही अफसोसनाक बयान दिया है। हमें कष्ट हुआ कि SGPC सिखों की धार्मिक जथेबंदी है, उसकी प्रेसिडेंट इतना बड़ा झूठ बोलेगी तो उसका मैसेज क्या जाएगा? श्रोमणी अकाली दल का इस आंदोलन से कुछ भी दूर नज़दीक का रिश्ता नहीं, वास्ता नहीं। उसने कह दिया कि ये आंदोलन तो हमारा है, हमने किसान जथेबंदियों को आगे लगाया हुआ है। तो
हम उसके बयान की निंदा तो करते हैं, इसके साथ अकाली दल से मांग करते हैं कि अकाली दल उसके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी बात मांग करते हैं कि SGPC प्रेसिडेंट झूठ बोली है, इसलिए श्री अकाल तख्त साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर क्या नाम हो गया उनका? बीबी जगीर कौर प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट को जो झूठ फैलाकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा। जितनी सख्त से सख्त शब्द हैं उनके साथ हम उसके बयान की तो निंदा करते ही हैं, बल्कि श्रोमणी अकाली दल को भी आगाह करते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसी बात कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी आज आप सब जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, अभी हमारे पास उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं आई चीज़। जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी लीगल टीम को उसके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, डल्लेवाल जी, सर जगजीत सिंह डल्लेवाल, बस यही देखिए, कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुखांत वापरा है। बहुत एक महान हस्ती संत बाबा राम सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे जो इतनी बड़ी शहादत दी है देश के किसानों के लिए, उसको आज ये फैसला हुआ है कि आज सुबह दो बैठकें हुई हैं उन्हीं के मामले में को लेकर। सुबह हुआ था कि आज 2 घंटे के लिए स्टेज उनके लिए छोड़ दी गई थी और उस पर कीर्तन हुआ, उस पर उनको श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गई हैं। और उसके बाद कल बाबा जी का अंतिम संस्कार वहीं पे होगा, उनके गुरुद्वारा साहिब जहाँ उनकी जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ से कुछ नेता वहाँ पे उनके सत्कार में बड़ी संख्या में और किसानों को भी साथ लेकर वहाँ पहुँचेंगे। करनाल सिंगड़े का क्या गाँव था सर? सिंगड़ा गाँव सिंगड़ा, वहाँ पहुँचेंगे। और इसके आगे हमारे एडवोकेट साहब सेखू साहब ये कुछ बात बताएं। किरणजीत सिंह सेखों, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। आज मीटिंग में हमने जो हमारा ये आंदोलन पिछले 27-28 तारीख से जहां दिल्ली में चल रहा है सब बॉर्डर्स के ऊपर, उसका बैठ के हमने एनालिसिस जो है विश्लेषण किया है। और उसमें हमने पाया है भी ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है और किसान जो हैं वो लगातार पीछे से, वो यूपी हो, वो राजस्थान हो, वो हरियाणा हो, वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, वो वहाँ से दिल्ली के लिए वो चल रहे हैं और ये मजबूती पकड़ रहा है। और जो यहाँ नहीं आ सकते, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और तेलंगाना है और दूर के स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ किसानों ने अपने लेवल के ऊपर इस तीनों जो काले कानून हैं, किसान विरोधी हैं, इनके खिलाफ अपने अपने लेवल के ऊपर बड़े सख्त जो प्रदर्शन हैं वो आयोजित किए हैं। और वहाँ अब 20 तारीख को जितने भी किसान आंदोलन में हमारे भारत देश में कहीं भी किसान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनका हम 20 तारीख को गांव पर लेवल के ऊपर और कस्बा के ऊपर, टाउन के ऊपर, सिटी में यहाँ भी किसान संगठन हैं और आम लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसलिए हमारा आंदोलन जो है वो मजबूती पकड़ रहा है। और जो बीजेपी है, केंद्रीय सरकार है, जो इस हमारे आंदोलन को दूषित करना चाहती है,
इसमें खंडित करना चाहती है, इसको अपने अपने प्रचार के माध्यम से ऐसा पेश कर रही है भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ गई हैं, हमारी बात हो रही है। वो नाम नेहाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप सब लोग देख रहे हो कितने दिनों में, कितनी सर्दी में सब किसान ऑर्गेनाइजेशंस सिंघू पे बैठी हैं, टीकरी पे बैठी हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर पे बैठी हैं और मथुरा वाले बॉर्डर पे बैठी हैं और इवन जो जयपुर से दिल्ली को बॉर्डर आता है वहाँ बैठी हैं। इसलिए ये हमारा जो आंदोलन है दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाता है। ये तब ही समाप्त हो सकता है जब ये काले कानून जो हैं इनको केंद्रीय सरकार वापस ले। शिव कुमार कक्का जी, आपको बताया कक्का जी आप बोलिए। वो जो बॉर्डर पे जो अरेस्ट ओके सर, थोड़ा बीच में आ जाए ताकि आवाज़ इधर चेंज कर लो कुर्सी। आ जाओ जी, आप बैठे रहो, जाएगी आवाज़, दिन जाएगी, आ जाओ, जोर से बोलेंगे। आ जाओ जी, बस देखिए, चिल्ला बॉर्डर पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के एक वरिष्ठ किसान नेता को गिरफ्तार कर लिया है और 350 महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है जी, और 450 लोगों को डिटेन किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश से, अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें, न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद हैं और सरकार को घुटना टिका कर रखेंगे। एक दूसरा, चूंकि ये माहौल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी दुखी मन से हो रही है। माहौल भी हमारा गमगीन है, हमारे सभी साथी बहुत दुखी हैं। बाबा राम सिंह जी एक संदेश देकर गए हैं कि वो कितनी गहराइयों तक इस आंदोलन से जुड़े थे, वो कितने व्यथित थे कि उन्होंने भगत सिंह की तरह, भगत सिंह को ऐसा लगा, शहीद आजम को, कि मेरी फांसी के बाद एक इंकलाब आएगा। और एक तो ये कि सरकार को दे रही चुनौती कि हम इस कदर पीड़ित हैं, इस कदर हम कष्ट में हैं कि हमको आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। और साथ ही देश के पूरे किसानों को जो घरों में बैठे हैं, गाँव में हैं अभी, उनको दिल्ली की ओर रवाना करने के लिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए, और जो बीजेपी का झूठ चल रहा है पूरे देश में, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। थैंक यू। सर जो एक मिनट जी, केरला से केवी राजू, केवी बिजू My sound will come everywhere. No problem. मैं उठता। इतना साउंड चलाओ तुम अपना। My name KV Biju. I am the national coordinator of Rashtriya Kisan Mahasangh. Today, in our committee, we took a decision about the Supreme Court case. We decided to consult 4 Supreme Court senior advocates. Then we will decide after discussing with the 4 senior counsel, we will take a decision. This is the today's committee's decision. So many media person want to know about our decision. This is our decision. These 4 advocates are: one is Prashant Bhushan, another is Dushyant Dave, another is H.S. Fulka, another is Advocate Colin Gosalvas. This is the 4 name. One is Prashant Bhushan, another is Advocate Colin Gosalvas, another is Dushyant Dave. Second is Advocate Colin Gosalvas. Colin Gosalvas. Then Dushyant Dave. HS Fulka. These are the 4 names. So we will, the committee will consult all these 4 senior lawyers. Then we will take a decision. I have 2 specific questions on the judiciary.
The first is you have taken the names of these 4 councils related to the latest Supreme Court interim order yesterday for the committee or for the previous cases also. No. अभी ऑर्डर नहीं आया. Correct. So it means you will be acknowledging the court's proceedings. No. No. Whether we want to implead or not, Okay. that we will decide by consulting with Okay, them. sir, राजवल साहब मेरा स्पेसिफिक सवाल हैगा ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਲਾਸ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੀ- ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰ ਦ ਸਕੈਨਰ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਬੀ ਯੈਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੋਂਟ ਕਮੈਂਟ No, We there is are not party to that petitions. No notice. Any information is with us. So without no with you no or with all of no you. no You are because till today, even regarding the yesterday or today proceedings, no notice or anything has not been come for us. My question is So we regarding can't the previous comment upon petition. that. My We can't question is comment. regarding the previous petition. No, Both are ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। because we are not party. We are not respondent in that. We are not respondent. party to this issue if you receive the नहीं कुछ नहीं जब तक वकीलों को कंसल्ट नहीं कर लेते कुछ भी नहीं एक चीज का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ये है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए और एक कमेटी जो बनेगी वो आप लोगों के बीच में नहीं कुछ भी नहीं नो कमेंट्स प्लीज नो कमेंट्स ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं शेखो साहब नो कमेंट्स प्लीज जब तक हमारे वकील उनसे सलाह करके हम कोई डिसीजन नहीं लेते नो कमेंट राजवाल साहब आज आम आदमी कहना चाहिए कि सलाह लेने के बाद राजवाल साहब Yes. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ आम आदमी पार्टी में आज राजवाल साहब वकीलों ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ कि पार्टी बनना है या नहीं बनना है ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਈਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ सर कमेटी बनने के पक्ष में हो कि नहीं आप लोग इसका जवाब दीजिए। नो कमेंट प्लीज अभी हमारे पास कुछ आया ही नहीं धक्के से कहलवाओगे मेरे से जब कुछ आया ही नहीं हमारे पास पब्लिक डोमेन में आ गया था पब्लिक डोमेन में होगा लेकिन कल पब्लिक डोमेन में आ गया था बिजू जी लंबा ना खींचो इसमें Our question is, have you Please, seen the लंबा नहीं खींचो इसमें नो ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ वही क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो उन्होंने किया मैं पहले जवाब दे चुका हूँ 20 दिन से चल रहा है जब तक हमारे पास कुछ नहीं आएगा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आपस में क्या होता है उस पर हमारा कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं। बट सर मीडिया के जरिए आपको हम लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन मीडिया में कई बात कुछ और होती है बाद में कुछ और हो जाता सुप्रीम है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ऐसे के बारे में तो हम मैंने बड़ा स्पष्ट कह दिया आई वोंट कमेंट। राजवाल साहब जो पापा जी का नाम वो उस तरीके की कोई निराश मैं बोलना ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ बोलणगे ये हरियाणा के निवासी है बाबा जी। बाबा जी लगातार 9 तारीख से हमारे बीच में थे वो बार बार यहाँ आते रहते थे 5 लाख रुपये डेरे की तरफ से
आंदोलन में उन्होंने दिए, कंबलों का लंगर लगाया। और हमारे हरियाणा का जो सीवर है, बाबा जी उसमें बार बार आते रहते थे, एक ही क्वेश्चन करते थे। बड़े शांत स्वभाव के, बड़े पहुंचे हुए संत थे। क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं आंदोलन में, बड़े बुजुर्ग हैं आंदोलन में। हमें उनकी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, मगर हमें लगता है बाबा जी बहुत पहुंचे हुए संत थे। शायद पूरी जो सिख समाज ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर जो संकट की घड़ी आ जाए, शायद वो अपने शरीर पे झेल गए। इसके लिए हमें बड़ा दुख है। और इस दुख के साथ साथ हमें पूरी संगत से एक प्रार्थना भी करना चाहेंगे। उनके बहुत ज़्यादा समर्थक हैं हरियाणा में, पंजाब में भी। बाबा जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि मेरे से किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं होता। यह हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है। बाबा जी का बलिदान व्यर्थ तभी नहीं जाएगा जब आप इस आंदोलन को जिस तरीके से हमारा पीसफुल चल रहा है उस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं सरकार से भी एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जब से आंदोलन चला हुआ है आप गिनती कीजिए कितने किसानों ने शहादत होगी, कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष इसमें चले गए। और ज़्यादा नरभक्षी ना बने। हम इस देश के नागरिक हैं, घमंड को छोड़िए। एक महापुरुष ने कहा था, जब जिद्दी अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर होता है। हम इस देश के नागरिक हैं। किसान से बड़ा इस देश का कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। किसान का 2 बेटे होते हैं, एक सेना में जाता है, खेत में काम करता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ना तो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करें, ना फूट डालने की कोशिश करें। जितना संभव हो सके मोदी जी किसानों की मांग जायज़ है और आप इनको मानिए। अगर आपने कोई पहले ये जिस किस्म की बातें चली हुई, अगर बिल लाने से पहले बातें चलती बेहतर था। अब तो एक ही रास्ता है, बिलों को रद्द करो, दोबारा डायलॉग उसके बाद इस किसान नेताओं से करो। अगर आपने कोई और बात करनी है तो MSP या कानून लाओ। यही हमारी आज का कहना।